اس ویڈیو میں ہم ریڈلز یعنی پہیلیوں کو پڑھ کر ان کے جواب تلاش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ گیس ہو ایم آئی۔ گیس یعنی بوجھیے، اس کے بعد ہو ایم آئی سے پہلے اور بعد میں یہ جو نشان ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسپیچ مارکس۔ اور ان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان جو جملہ لکھا ہے وہ بات کسی نے کہی ہے اور یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو کہے گئے ہیں۔ اور یہاں ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، ہو کون، ایم ہوں، آئی میں۔ گیس ہو ایم آئی یعنی بوجھیے میں کون ہوں۔ اس طرف کچھ جانوروں کی تصاویر ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ پہیلیاں یا ریڈلز ان جانوروں کے متعلق ہیں۔ اس پہلی تصویر میں کیا ہے؟ یہ ہے ایک ایلیفینٹ یا ہاتھی، اور اس تصویر میں کیا ہے؟ منکی یا بندر، اور یہ ہے پیرٹ یعنی طوطا، اور اس تصویر میں ہے ایک جراف یعنی زرافہ۔ تو چلیے اب مل کر ریڈل کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ بھی پڑھیے۔ I am very big۔ I میں am ہوں، very بہت، big بڑا۔ I am very big یعنی میں بہت بڑا ہوں۔ اگلا جملہ I have big ears۔ I میرے have ہیں big بڑے، ears کان۔ I have big ears یعنی میرے کان بڑے ہیں۔ اگلا جملہ I have a very long nose۔ I میری have ہے a ایک very بہت long لمبی nose ناک۔ I have a very long nose۔ یوں تو I have کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس ہے، تو اگر ہم اس کا ترجمہ اسی طرح کریں تو یہ ہو جائے گا میرے پاس ہے ایک لمبی سی ناک، لیکن اردو ترجمے کے مطابق یہ سننے میں اتنا ٹھیک نہیں لگتا، تو ہم کہیں گے I have a very long nose یعنی میری ناک بہت لمبی ہے، یہ ہوگا درست ترجمہ۔ اب اگلا جملہ Who am I اور ایک سوالیہ نشان۔ Who کون، am ہوں، I میں۔ کون ہوں میں یا پھر میں کون ہوں؟ تو اس پہیلی میں کیا بتایا گیا ہے؟ جو جانور اپنے متعلق پوچھ رہا ہے وہ اپنے بارے میں کیا بتا رہا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، اور اس کے کان کیسے ہیں؟ وہ بھی بڑے ہیں، اور اس کی ناک کیسی ہے؟ بہت لمبی ہے۔ تو چلیے ان تصاویر کو دیکھ کر بتائیے ان میں سے وہ کون سا جانور ہے جس کے بڑے بڑے کان اور ایک لمبی سی ناک ہے اور وہ بہت بڑا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک، درست جواب ہے ایلیفنٹ یعنی ہاتھی۔ تو جب آپ پہیلی کا جواب بوجھ لیتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے بوجھ لیا، یہ ہے ہاتھی۔ یہ ہے ہاتھی یا یہ ہے ایک ہاتھی، اس بات کو انگلش میں کیسے کہیں گے؟ یہ کے لیے اٹ، ہے کے لیے از، ایک کے لیے این، اور پھر ہاتھی کے لیے ایلیفنٹ۔ تو یہ ہو جائے گا اٹ از این ایلیفنٹ۔ یہ ہے اس پہیلی کا جواب۔ تو چلیے اب اسے لکھنا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کیپٹل آئی، باقی کے لیٹر اسمال میں، آئی کے بعد ٹی، یہ بن گیا اٹ۔ اس کے بعد کیا لکھنا ہے؟ از، آئی ایس، از، پھر این، اے این این، اور پھر ایلیفنٹ، ای ایل ای، پی ایچ
A-N-T एलिफेंट और फिर फुल स्टॉप। मिलकर पढ़ते हैं, इट इज एन एलिफेंट, यानी ये है एक हाथी। इस जुमले में एन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि ये तादाद में सिर्फ एक चीज के मुतालिक बात हो रही है और इसका मतलब होता है एक। और यहाँ अ की जगह एन क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसके बाद जो लफ्ज आ रहा है वो किससे शुरू हो रहा है? लेटर ई से, और वो क्या है? एक वाल। बिल्कुल ठीक। तो वाल वाले लफ्ज से पहले हमेशा एन लिखा जाता है। चलिए अब मिलकर पढ़ते हैं अगली रिडल। आप भी पढ़िए। आई एम वेरी टॉल। आई एम शॉर्ट फॉर्म है आई एम की। आई यानी मैं, एम हूं, वेरी बहुत, टॉल लंबा। आई एम वेरी टॉल यानी मैं बहुत लंबा हूं। अगला जुमला, आई हैव अ वेरी लॉन्ग नेक। आई मेरे, हैव पास है, या फिर दुरुस्त तर्जुमे के मुताबिक ये हो जाएगा मेरी है, अ एक, वेरी बहुत, लॉन्ग लंबी, नेक या गर्दन। आई हैव अ वेरी लॉन्ग नेक यानी मेरी गर्दन बहुत लंबी है। अगला जुमला, आई कैन ईट ट्री टॉप्स। आई मैं, कैन ईट खा सकता हूँ, ट्री दरख्त, टॉप्स चोटी या सिरे यानी ऊपर का हिस्सा। आई कैन ईट ट्री टॉप्स यानी मैं दरख्तों की चोटियों को खा सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जानवर दरख्तों के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से से पत्ते चुनकर खा सकता है। अगला जुमला, हु एम आई। हु कौन, एम हूँ, आई मैं। हु एम आई यानी मैं कौन हूँ। तो चलिए अब इन तस्वीर को देखकर बताइए इनमें से वो कौन सा जानवर है जो बहुत लंबा होता है और उसकी एक लंबी सी गर्दन होती है और वो दरख्तों के ऊपर से पत्ते चुनकर खा सकता है। बिल्कुल ठीक। दुरुस्त जवाब है जिराफ यानी जिराफा। तो ये है एक जिराफा। इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट इज अ जिराफ। बिल्कुल ठीक। तो चलिए अब इस जुमले को लिखने का तरीका सीखते हैं। कैपिटल आई, इसके बाद बाकी के लेटर स्मॉल में, आई के बाद टी, इट, इसके बाद क्या है? इज, आई एस, इज। इट इज अ यानी एक, और फिर लिखना है जिराफ, जी आई आर ए डबल एफ ई, जिराफ, और फिर फुल स्टॉप। मिलकर पढ़ते हैं, इट इज अ जिराफ यानी यह है एक जिराफ, या फिर यह है एक जिराफा। इस जुमले में हमने अ का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक चीज के मुतालिक बात हो रही है और उस चीज का नाम जिस लेटर से शुरू हो रहा है वो वाल नहीं है, तो ऐसे लफ्ज से पहले अ लगाया जाता है। चलिए अब अगली रिडल को मिलकर पढ़ते हैं। आई एम वेरी कलरफुल। आई एम शॉर्ट फॉर्म है आई एम की। आई मैं, एम हूँ, वेरी बहुत, कलरफुल रंगीन। आई एम वेरी कलरफुल यानी मैं बहुत रंगीन हूँ। अगला जुमला, आई लव ग्रीन कलर। आई मुझे, लव पसंद है, ग्रीन सब्ज, कलर रंग। आई लव ग्रीन कलर यानी मुझे सब्ज रंग पसंद है। अगला जुमला, आई
can speak. I मैं can speak यानी बोल सकता हूँ. I can speak यानी मैं बोल सकता हूँ. अगला जुमला Who am I? Who कौन, am हूँ, I मैं. Who am I? मैं कौन हूँ. तो चलिए अब आप इन तस्वीर को देखकर बताइए इनमें से वो कौन है जो कि बहुत रंगीन है और वो बोलना भी जानता है, यानी अगर उसे सिखाया जाए तो वो आपके बताए हुए अल्फाज को दोहरा सकता है. बिल्कुल ठीक. दुरुस्त जवाब है पैरट यानी तोता. तो ये है एक तोता. इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ये है एक तोता यानी इट इज अ पैरट. बिल्कुल ठीक. अब इस जुमले को लिखना सीखते हैं. सबसे पहले लिखेंगे इट, कैपिटल आई. इसके बाद बाकी लेटर्स को कैसे लिखना है? स्मॉल में. आई के बाद क्या आता है? टी, इट. फिर क्या लिखना है? इज लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई और फिर एस. बिल्कुल ठीक. इसके बाद क्या लिखना है? यानी एक. इसके लिए लेटर ए लिखेंगे और फिर पैरट, पी ए डबल आर ओ टी, पैरट और फिर फुल स्टॉप. इट इज अ पैरट यानी ये है एक तोता. चलिए अब इस अगली रिडल को मिलकर पढ़ते हैं. आप भी पढ़िए. आई एम वेरी नॉटी. आई एम यानी आई एम मैं हूं, वेरी बहुत, नॉटी शरारती. आई एम वेरी नॉटी यानी मैं बहुत शरारती हूं. अगला जुमला आई जंप ऑन ट्रीज. आई मैं जंप उछलता हूं, ऑन पर, ट्रीज यानी दरख्त. आई जंप ऑन ट्रीज यानी मैं दरख्तों पर उछलता हूँ. अगला जुमला आई लाइक बनानाज और यहाँ एक फुल स्टॉप होगा. आई मुझे लाइक पसंद है, बनानाज यानी केले. आई लाइक बनानाज यानी मुझे केले पसंद हैं. सॉरी, ये जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ, हमने फुल स्टॉप हटा दिया क्योंकि इसके बाद है एंड पीनट्स. तो ये है मुकम्मल जुमला. इसे एक मरतबा फिर पढ़ते हैं. आई लाइक बनानास एंड पीनट्स. आई मुझे लाइक पसंद है, बनानास केले, एंड और पीनट्स मूंगफलियां. आई लाइक बनानास एंड पीनट्स यानी मुझे केले और मूंगफलियां पसंद हैं. अगला जुमला हु एम आई कौन हूँ मैं. हु एम आई यानी मैं कौन हूँ. तो चलिए अब आप बताइए इन तस्वीर में से देखकर कि इनमें से वो कौन है जो कि बहुत शरारती है और वो दरख्तों पर उछलता है, उसे केले और मूंगफलियां भी पसंद होती हैं. बिल्कुल ठीक. दुरुस्त जवाब है मंकी यानी बंदर. तो ये है एक बंदर. इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट इज अ मंकी. चलिए अब इसे लिखना सीखते हैं. कैपिटल आई, इसके बाद बाकी के लेटर स्मॉल में. आई के बाद टी इट, आई एस इज, लेटर ए यानी अ और फिर मंकी एम ओ एन के ई वाई, मंकी और फिर फुल स्टॉप. मिलकर पढ़ते हैं. इट इज अ मंकी यानी ये है एक बंदर. तो ये थी आखिरी रिडल. अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश जारी रखिए.